So hello everyone, myself Muhib Khan and I am a third year medical student pursuing MBBS from abroad from Caspian International School of Medicine, Almaty, Kazakhstan. And today I am here to discuss one of the most important topic which has been on the internet for a while from last few years. It is a very buzzing topic which is MBBS in India versus MBBS in abroad. What to choose, why abroad, why India and all. So today I will answer all your questions in a comparison kind of video in which I compare the MBBS in India versus MBBS in abroad in a on the basis of my personal experience, because I have been there for the past few years and I have been through the journey you are right now, like the NEET exam and all. Then I have to decide which side should I go. Either I should go for abroad or I should go to pursue MBBS in India, private. And so I'll be discussing with you MBBS in India versus MBBS in abroad, a honest, my perspective, what I have feel, what I have gone through. So let's get started. Okay, let's start. MBBS in India versus MBBS in abroad. Let's talk about the India first. In India we have two type of medical colleges, either government medical college or private medical college. In abroad we also have these same two, the government medical college and the private medical college. Okay, the difference is that the difference in the fees of the government medical college in India and the private medical college in India is extreme. Whereas abroad की बात करेंगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. 5 लाख 6 लाख इससे ऊपर का आपको डिफरेंस फीस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दोनों बदल सकती है. इंडिया की बात करोगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में काफ़ी फ़र्क हो सकता है. सेम गोज विद अब्रॉड. ओके, so today I'll be discussing these 7 points with you. First is the admission criteria, what will be your budget, the clinical exposure, quality of teaching, language and culture, future opportunities and license to practice in India, because ultimately सबको इंडिया आना है, exception supplied. Okay, first is the admission criteria. First let's talk about the India. In India you have to complete your 11th 12th with PCB. The percentage may vary 75%, 50-60%. This is not important, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. The main thing is this particular thing, this motherfucker, the NEET exam. Okay, to take admission in India you have to appear in NEET. अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे से मेरा मतलब है 650, 680, 700, you will get a government medical college in India. बधाई हो, इससे अच्छी कोई बात आपकी लाइफ में हो नहीं सकती है. Second, if you are not scoring that good, you will get the private medical college in India. Okay, and when I talk about abroad, the same thing. You will have to pass your +2. 50-60 आपको परसेंटेज चाहिए होगी अपने 11th-12th में, जस्ट क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा. Then you have to give NEET. Difference is here. In India you have to score either good marks to go government medical college, and if you don't score good marks you will go private medical college. मतलब मार्क्स मैटर करते हैं, बट अब्रॉड के अंदर आपके मार्क्स मैटर नहीं करते हैं. आपने नीट में कितना स्कोर करा, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम. इन 2025 द क्वालिफाइंग मार्क्स इज़ अराउंड 144, 140 कह सकते हो, 142, 145 बोल देते हैं, 144 टू बी मोर प्रिसाइज. दिस इज़ द क्वालिफाइंग मार्क्स इन 2025 फॉर नीट. अगर आपके इतने मार्क्स हैं 145, 144, 145 अराउंड 150 के अराउंड हैं, so you can get the MBBS admission in abroad. Okay, so this is about the admission criteria. Second thing is the budget. Okay, so suppose you will get the good marks in India. Okay, you will get the government medical college, and if you get government medical college you don't have to worry about your fee. You will spend around 1 lakh, and 1 लाख में बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ. ओके, इससे भी कम में आपकी पूरी डिग्री ख़त्म हो जाएगी. योर एंटायर 6 years स्टडीज़, योर रहना, योर खाना एंड एवरीथिंग. दिस इज़ 1 lakh इज़ मोर देन इनफ. ओके, सेकेंड, इफ़ यू गेट अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया. नाउ दिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर स्कोर. लाइक इफ़ यू आर स्कोरिंग अराउंड 450, 500, देयर आर सम कॉलेज विच कैन गिव यू a package of 60 lakh. You can get a private medical college in India up to 60 lakh, 70 lakh, 80 lakh. It starts from 60 lakh and it can go as higher as 2 crores.
ओके, so private medical college in India is also dependent upon your marks. Okay, you are scoring around 500, 550 और 450 और आपको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इंडिया के अंदर 60 to 80 lakhs के अंदर. ओके, वो आपको इंडिया के किसी भी कोने में मिल रहा है. आपको 60 से 80 लाख में इंडिया में मेडिकल कॉलेज मिल रहा है प्राइवेट, और यू कैन अफोर्ड इट. आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं. गो फॉर इट. डोंट चूज MBBS अब्रॉड. ओके, इफ़ योर पॉकेट अलाउज यू टू स्पेंड 60 to 80 lakhs, आप बिना लोन के, बिना कर्ज में आए आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं और आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है इंडिया में. गो फॉर इट. योर फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी दिस. आपकी पहली प्रायोरिटी शुड बी दिस. आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए. ओके, सेकेंड थिंग, अगर आपके मार्क्स इतने नहीं है कि आप वो 60, 80, 60, 80 lakhs वाले पैकेज में आ सको, तो आपका फिर 1 CR से 2 CR के बीच में पैकेज रहने वाला है. तो उसके लिए आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो है MBBS अब्रॉड. सो MBBS अब्रॉड start from as low as 25 lakhs and it can go up to 60, 70, 80, 1 CR and so on. हम एवरेज के लिए मान के चलेंगे 25 से 60 लाख के बीच में आपका MBBS अब्रॉड पूरा हो जाएगा, which includes your tuition fees, your hostel, your mess, your admission charge, pre-admission charge and all. Okay, so यहाँ मैंने कुछ कंट्रीज़ का एस्टिमेटेड बजट लिखा है. लाइक फर्स्ट नेपाल, मिनिमम 60 लाख लगेगा. 60 से 70 लाख आपका लगना ही लगना है. बहुत अच्छा है, इंडियन करिकुलम को फॉलो करता है, पास में है, एवरीथिंग इज़ गुड. सेकंड इज़ जॉर्जिया, 40 से 50 लाख का आपका बजट लगेगा वहाँ पे. क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है वहाँ के लिए. कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, जिसका अगर मैं FMG रेशो की बात करूँ 2024 का आई थिंक 82% था. और ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी है, ईस्ट वेस्ट यूनिवर्सिटी है, ALT यूनिवर्सिटी है. बहुत यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया में, नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़. ओके, थर्ड इज़ रशिया, 30 से 40 लाख का आपका बजट रहेगा टोटल. इससे कम में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ करा देती हैं, बट मेक श्योर द यूनिवर्सिटी इज़ NMC अप्रूव्ड. नेक्स्ट ऑप्शन इज़ अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन, जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जाते हैं. ओके, बिकॉज इट इज़ द चीपेस्ट ऑप्शन, जो आपका 20 से 35 लाख के अंदर पूरा MBBS करा देंगे. कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियाई कंट्रीज इसके अंदर सारी आती हैं. अब एक ऑप्शन और है जिसको मैंने अलग से हाईलाइट करा है, दैट इज़ बांग्लादेश. लिसन, इफ़ आई टॉक अबाउट स्ट्रिक्टली अबाउट द एजुकेशन और योर डिग्री, ओके, Bangladesh is a very very good option. I am not talking about the Bangladesh as a country. Bangladesh as a country, no, you have your security reason and all everything, but strictly talking about studies, Bangladesh is a very good option. 35 to 40 lakhs में आपका पूरा MBBS हो जाएगा. आपका रहना, खाना, आना जाना, everything will be covered in this package. बहुत अच्छा है, सिमिलर करिकुलम है इंडिया जैसा, 4.5 years प्लस 1 year की इंटर्नशिप, एब्सोल्युटली सेम. पॉपुलेशन ज़्यादा है तो क्लिनिकल एक्सपोजर गुड है, सब बहुत अच्छा है. ओनली टॉकिंग अबाउट द स्टडीज़. ओके, सिक्योरिटी रीज़न है, कंट्री कैसी है, वो सबको पता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ द क्लिनिकल एक्सपोजर. ओके, सो दिस इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, द क्लिनिकल एक्सपोजर इन इंडिया. बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, आप लोग की वॉर्ड ड्यूटीज़ लगती है या नहीं लगती है, आप लोग सर्जरीज देखते हो, किसी डिपार्टमेंट जाते हो, नहीं जाते हो. हम लोग सब जगह जाते हैं, एवरीथिंग. हमारी ड्यूटीज़ भी लगती हैं, हमारे वार्ड भी लगते हैं, बट you cannot compare our clinical exposure or abroad MBBS clinical exposure to that in India. ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ओके, इंडियन क्लिनिकल एक्सपोजर का मुकाबला एब्रॉड की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती है. अगर कोई आपसे कह रहा है ऐसा तो वो झूठ बोल रहा है, कंप्लीटली लाई. मैनी एजेंट विल से कि दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हैज़ 5 हॉस्पिटल, 6 हॉस्पिटल, 10 हॉस्पिटल, डजेंट मैटर. इट इज़ अ बिटर ट्रुथ. ये एक ड्रॉबैक है अब्रॉड से MBBS करने का, कि वहाँ पे आपको इतना अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इंडिया में आपको मिलेगा, या जो आपने अपने सीनियर्स को या मूवीज़ एंड ऑल्स में या हॉस्पिटल्स में देखा है वो आपको अब्रॉड में नहीं मिलने वाला है. ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर फॉर पास्ट 3 years. इसका एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया हैज़ अ वेरी vast pool of patient, because we have very high population
वी हैव वेरी वास्ट पूल ऑफ पेशेंट, बहुत पेशेंट हैं, इसलिए बहुत पेशेंट्स हैं वहाँ पर लर्निंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए एंड ऑल। बट अब्रॉड में आप बात करते हो तो अब्रॉड में आपको इतना पेशेंट पूल नहीं है। इंडिया में क्या होगा, यू विल हैव वार्ड ड्यूटीज़, यू विल गो, यू विल टेक पेशेंट हिस्ट्री, यू विल ट्रीट, यू विल मॉनिटर, यू विल एग्जामिन, एवरीथिंग यू विल डू। इन अब्रॉड हमारे साथ क्या होता है, इन 90% ऑफ द केस, एक्सेप्शन सप्लाइड, you have doctors, you have your teachers, you have your doctor, you have the assistant staff, they will perform and you just have to observe and learn. In India you will learn by doing it, in abroad you will learn by observing it. That's the difference. Again I am saying exceptions applied. There are some countries you will get a good clinical exposure. What are those? Okay, so मैं रीज़न बताया आपको क्लिनिकल एक्सपोजर इतना अच्छा ना होने का पॉपुलेशन। सो आपको अगर क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा चाहिए या इंडिया से सिमिलर चाहिए तो यू शुड गो फॉर नेपाल और बांग्लादेश। वहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, इसलिए वहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा ज़्यादा है। बजट अगर प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर नेपाल, अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, डिसीज़ इंडिया से सिमिलर हैं, करिकुलम सिमिलर है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम मिलेगा और पूरी इंडिया वाली वाइब अगर चाहिए तो गो फॉर नेपाल और यू कैन गो फॉर बांग्लादेश एज वेल। दोनों कंट्रीज़ का क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है, बहुत ड्यूटीज़ लगेंगी, सिमिलर इंडिया वाली फील आपको वहाँ पर आने वाली है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ दी क्वालिटी ऑफ टीचिंग और क्वालिटी ऑफ स्टडीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लिनिकल को हमने अलग कर दिया। क्लिनिकल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि MBBS इन इंडिया इज़ अ फार बेटर और विनर है। MBBS अब्रॉड उसका मुकाबला नहीं कर सकता है क्लिनिकल एक्सपोजर का। ओके, अब क्वालिटी ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया को हम एक साइड मान लेते हैं, MBBS इन इंडिया एंड वी हैव द MBBS इन अब्रॉड। इंडिया में योर इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर विल बी इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज। ओके, मराठी हो गई, जो भी लैंग्वेज आपकी होगी वो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। अब्रॉड में इट इज़ स्ट्रिक्टली इंग्लिश, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली इंग्लिश होगा। अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से नहीं है, कोई हिंदी मीडियम से है या एनी अदर मीडियम जो इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं समझ सकता, तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग, द सिलेबस वुड बी सेम इन इंडिया एंड इन अब्रॉड, बट इन अब्रॉड यू विल हैव एडिशनल सब्जेक्ट्स। दे विल टीच यू देयर लोकल लैंग्वेज, क्योंकि टीचर विल टीच यू इन इंग्लिश, लेकिन पेशेंट आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेगा, पेशेंट आपसे अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करेगा, तो आपको उनकी लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। सेकेंड, दे विल ऑल्सो टीच बेसिक इंग्लिश विद यू, कीपिंग इन माइंड एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट गुड इनफ और लाइक इतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसलिए बेसिक इंग्लिश भी आपको कुछ कुछ कंट्रीज़ में सिखाई जाती है एंड सम लोकल सब्जेक्ट एज वेल। सो MBBS इन इंडिया एंड MBBS इन अब्रॉड, सिलेबस सेम रहेगा। अब्रॉड में थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट आपके पास रहेंगे, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश रहेगा, दोनों में प्रीडोमिनेटली इंग्लिश रहेगा, लेकिन इंडिया में आपको पता है थोड़ी लोकल लैंग्वेज भी यूज़ होगी, तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली आपको इंग्लिश होने वाला है, सो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। थ्योरी की बात करूँ, जो थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, जो आपको बेसिक नॉलेज दी जाएगी, वो अब्रॉड में काफ़ी अच्छी रहती है और उसको आप थोड़ा इंडिया से भी बेहतर मान सकते हो। ओके, सो क्लिनिकल एक्सपोजर फार बेटर इन इंडिया, थ्योरेटिकल एक्सपोजर बेटर इन अब्रॉड। ओके, नेक्स्ट थिंग अबाउट लैंग्वेज एंड कल्चर। ऑब्वियसली अगर आप इंडिया से MBBS कर रहे हो तो आप सब कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, तो दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और अगर आप थोड़े आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ में चले जाओगे, नेपाल चले गए, बांग्लादेश चले गए, तो वहाँ पर भी आपको इतना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है और इतना ज़्यादा लैंग्वेज बैरियर भी वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बट व्हेन यू गो टू अब्रॉड इट इज़ अ कम्प्लीटली शिफ्ट, आपको कल्चरल डिफरेंस भी देखने को मिलेगा, आपको लैंग्वेज बैरियर भी देखने को मिलेगा, वहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। दिस इज़ दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लैंग्वेज आपको वहाँ सिखाई जाएगी, कल्चर के साथ आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ के जैसा भी वहाँ का कल्चर होगा करना पड़ेगा अब्रॉड के अंदर, और इंडिया के अंदर तो इसकी कोई दिक्कत है ही नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली सॉर्टेड। सेकेंड इज़ द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। आपने अपनी डिग्री करी, आपको इंडिया में लाइसेंस मिल गया, क्या प्रोसीजर है वो हम देखेंगे आगे अभी नेक्स्ट पॉइंट में। आपने इंडिया में MBBS करा, आपने अब्रॉड में MBBS करा, इट सपोज आपको दोनों को लाइसेंस मिल गया। अब मैनी एजेंट्स और मैनी कंसल्टेंट बच्चों को फंसाते क्या कहकर हैं कि अगर आप अब्रॉड से MBBS करते हो तो आपके पास ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, आप USMLE दे सकते हो, आप लैब दे सकते हो, आप UK जा सकते हो, आप ACE दे कहीं और जा सकते हो, आप कहीं भी वर्ल्ड में सेटल हो सकते हो। ये बात ट्रू है, इसमें कोई झूठ नहीं है, बट
ये आधा है। आप इंडिया से MBBS करने के बाद भी ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अब्रॉड से करोगे तभी आप कहीं निकल पाओगे। ये सारी चीज़ों के लिए आपको अपना एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको USMLE एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको PLAB एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको जहाँ भी जा रहे हैं उसके लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम आप इंडिया आने के लिए दोगे, आपने इंडिया में MBBS करा, आपने लाइसेंस एग्ज़ाम दिया, आपको लाइसेंस मिल गया। आपने अब्रॉड से MBBS करा, आपने इंडिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दिया, आपको इंडिया में लाइसेंस मिल गया। ओके, अब आप दोनों एक सेम पेज पर हो। जो इंडिया में स्टूडेंट कर रहा है उसको मान लीजिए कहीं और जाना है तो उस पर्टिकुलर कंट्री का एग्ज़ाम देगा और वहाँ चला जाएगा। अब्रॉड वाले को जाना है तो वो भी उसी एग्ज़ाम के थ्रू जाएगा। आप अब्रॉड से MBBS कर रहे हो, दैट डजंट मीन यू हैव एनी एज टू गो इन अब्रॉड और इन अदर कंट्रीज़ और ग्लोबली टू बिकम अ ग्लोबल डॉक्टर। आप अब्रॉड से MBBS कर रहे हो, दैट डजंट मीन यू हैव एन एज ओवर एन MBBS स्टूडेंट इन इंडिया अब्रॉड और अदर कंट्रीज़ जाने के लिए। नो, यू आर बोथ ऑन द सेम पेज। सो इस झांसे में मत आइएगा। बहुत एजेंट्स आपको ये बात बोलेंगे कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, ये है, वो है, वो आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन इंडिया। ओके, व्हाट इज़ द कॉमन पाथवे? ओके, इन इंडिया यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे आपके, जो भी होंगे, आपको लाइसेंस मिल गया, आपने इंटर्नशिप करी, आपने नीट PG करी, यू आर सेटल, यू आर गुड टू गो। अब्रॉड में क्या होता है, आपने FMG दिया, आपका एग्ज़ाम होता है FMG जो 300 मार्क्स एग्ज़ाम होता है, आपको 50% लाना होता है, 150 लाना होता है नॉल, आपने वो दिया, नीट PG था, यू विल सेटल। ये कहानी थी पुरानी। अब अकॉर्डिंग टू न्यू रूल, चाहे आप MBBS अपना इंडिया से करें, चाहे आप गवर्नमेंट से करें, चाहे आप प्राइवेट से करें, और चाहे आप अब्रॉड से करें, you choose any of the option, you have to give the same universal exam which is next one और next two, दो फॉर्म में होगा, लेकिन सबको अब एक ही एग्ज़ाम देना है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इंडिया में 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लगा के अपनी MBBS की डिग्री कर रहा हूँ, और वहीं मैं मान लीजिए रशिया से, कजाकिस्तान से 25 लाख में डिग्री कर रहा हूँ, हम दोनों को एक ही एग्ज़ाम देना है विच इज़ नेक्स्ट। आपकी स्टडीज़ के ईयर थोड़े ज़्यादा होंगे, वो बात अलग है, लेकिन दोनों को एग्ज़ाम एक ही देना है, नेक्स्ट का एग्ज़ाम। चाहे आप इंडिया से करो, चाहे आप अब्रॉड से करो, चाहे आप गवर्नमेंट से करो, चाहे आप प्राइवेट से करो, ईच ऑफ यू विल गिव द सेम एग्ज़ाम विच इज़ नेक्स्ट। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और यही एक पॉइंट है पर्सनली जिसकी वजह से मैंने MBBS अब्रॉड को चूज़ करा रादर देन गोइंग फॉर अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स आपके नीट 2025 या नीट के कोई से एग्ज़ाम जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, आपके उतने नंबर नहीं आए हैं जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जितना आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए चाहिए। ठीक है, तो अभी अपने पास क्या वेज है? अभी डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है, अभी ये टाइम है एक्शन करने का। तो हमारे पास क्या वेज हैं, अभी हमारे पास क्या रास्ते हैं, व्हाट कैन वी डू? ओके, फर्स्ट थिंग, कॉल ड्रॉप लेते हैं, अगले साल तैयारी करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ले लेंगे, पहला ऑप्शन है। सेकंड, अगर आपकी बजट इतना है, आपके पेरेंट्स इतना आप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया विदाउट लोन। ओके, थर्ड इज़ द MBBS अब्रॉड। अगर आपको बजट इतना हाई नहीं है कि आप 1 CR 2 CR अफोर्ड कर सकते हो, 30-35 लाख लगाए, आपने डिग्री करी, इंडिया आए, कंप्लीट। नेक्स्ट, कंप्लीटली आप अपने ड्रीम को ही गिव अप कर दें, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही गलत ऑप्शन है, इसको लिस्ट में होना भी नहीं चाहिए। ओके, इतनी मेहनत करिए तो उसको वेस्ट कर देना कंप्लीटली यूजलेस बात है। अब हम बात करते हैं ड्रॉप के बारे में। ड्रॉप किसको लेना चाहिए? आई एम सेइंग दैट अगेन। ओके, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, और बहुत 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 ज़्यादा थर्ड ड्रॉप, बस इसके बाद नो ड्रॉप। ओके, और ड्रॉप लेना भी किसको चाहिए? सेकंड, जैसे आपका फर्स्ट ड्रॉप था, आपका कुछ भी स्कोर आया, आपका सेकंड ड्रॉप। ओके, अब इस फर्स्ट ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप के बीच में आपके मार्क्स इंक्रीमेंट कितने हैं, ये डिसाइड करेंगे कि आपको थर्ड ड्रॉप लेना भी है या नहीं लेना है। अगर आपका मार्क्स इंक्रीमेंट फर्स्ट से सेकंड ड्रॉप में 50 नंबर, 60 नंबर, 100 नंबर आ रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको ड्रॉप लेने का। यू शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शन, आप कुछ और कर लें, BHMS, BAMS, या इन 3 ऑप्शन जो हमने बताया इसमें से कुछ कर लें, लेकिन ड्रॉप लेना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली डू, बट बेहतर ये रहेगा कि अगर इंक्रीमेंट आपका अप्रॉक्स 200 मार्क्स का नहीं हुआ है एक साल के अंदर, सो डोंट ऑप्ट फॉर ड्रॉप। ओके, नाउ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हु शुड गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। अगर आपको 60 से 80 लाख में कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया मिल रहा है और आपकी जेब ये इजाज़त देती है कि आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर इट। इस 60 से 80 लाख में आपको कब मिलेगा? जब आपके मार्क्स थोड़े अच्छे होंगे, 450, 500, 580, जब आपके ऐसे मार्क्स होंगे तो आपको 60 से 80 लाख के अंदर MBBS इन इंडिया मिल सकता है। और अगर आपको ये मिल रहा है, गो फॉर इट। इसके बाद अगर हायर क्लास पर आएँ तो आपको 1 CR से लेके 2 CR तक भी आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है। ना हु शुड ऑप्ट दिस? जिसके पास इतना बजट है कि वो 1 CR या 2 CR विदाउट एनी लोन अफोर्ड कर सकता है, वो यहाँ जा सकते हैं। अगर आपको लोन लेना पड़ रहा है, डोंट ऑप्ट इट। लोन लेना ही है तो लोन लेने के बाद आपको अपना थर्ड ऑप्शन जो है MBBS अब्रॉड, उसकी तरफ आना चाहिए। ओके, so let us summarize everything. मेडिकल कॉलेज इन इंडिया एंड मेडिकल कॉलेज इन अब्रॉड, दोनों के अपने पॉइंट्स हैं, दोनों के अपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, दोनों के अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। हाँ, MBBS इन इंडिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, और एक तरीके से देखा जाए सीधा सीधा कंपैरिजन बनता भी नहीं है MBBS इन इंडिया और MBBS इन अब्रॉड का, अगर हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट हटा दें तो। बट मेन दिक्कत ही फाइनेंशियल एस्पेक्ट और मार्क्स की दिक्कत है। ओके, तो दोनों के अंदर अपनी अच्छाई हैं, दोनों के अंदर अपने पॉजिटिव पॉइंट हैं एंड अपने नेगेटिव पॉइंट हैं। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप इनफ, उसके बाद आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, आपको अदर ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए। हु शुड गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया? जिसके पास बजट है इतना, जिसके पेरेंट्स उस पर इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी लोन। ओके, हु शुड गो फॉर अब्रॉड मेडिकल कॉलेज इन इंडिया? जिसको पक्का डॉक्टर बनना है, जिसके पास मीडियोकर फैमिली से आता है, 30-35 लाख का बजट है, या लोन लेने का सोच भी रहे हैं, तो आप अब्रॉड की MBBS की तरफ जा सकते हैं। डोंट गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। नाउ लेट अस, so if you want to know more about the MBBS abroad, or you have any query related to this particular video, MBBS in India and MBBS abroad, you can comment down on the video, and you can also contact me on my Instagram. This is my Insta handle, and this is my page, which is Global Med Path. This is the page dedicated to the MBBS abroad admissions. I post stuff related to MBBS abroad here. वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। And in the upcoming videos, we will be discussing country-wise MBBS abroad, like MBBS in Russia, everything about Russia, MBBS in Russia, different top universities and all, then Kazakhstan, Kyrgyzstan, the country-wise, and many more. And if you want a video on specific university and specific country, you can comment down below and text me as well. Bye bye, all the best, good luck.